पीयूष गोयल जी आ चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं TV9 नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वरुण दास जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। सर प्लीज़ आएँ, यहाँ पर एक वेलकम नोट ज़रूर बोलें और उसके बाद हम पीयूष गोयल जी से ये आग्रह करेंगे कि वो संबोधन दें अपना। सर, वरुण सर। Thank you, Gaurav. Honorable Chief Guest, Sri Piyush Goyal ji, I extend to you a very warm welcome to the second edition of Money9 Financial Freedom Summit. We would have loved to have you amidst us in person, but we do understand your preoccupation with the matters of state and the citizen. Thank you, sir, for joining us virtually. We have all gathered here for a very noble mission of seeking financial freedom for each and every citizen of this country. I'm extremely happy to recall that the foundation for financial freedom for 140 crore citizens were laid by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji during his first Independence Day speech delivered on August 15, 2014. Unveiling the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, he then said with dismay in his address that there were more mobile phones than bank accounts in the country. Paying utmost attention to the financial inclusion agenda, the government has over the decade transformed the financial landscape of our country. India has fast-tracked its financial freedom agenda, attracting global attention for its JAM Trinity, fintech revolution, and the inception of digital public infrastructure. Staying the course, the Reserve Bank of India has set in motion the National Strategy for Financial Inclusion. For providing universal access to financial services, RBI has noted that while schemes such as PMJDY have created the required banking infrastructure to enable financial inclusion, efforts are required to improve access to insurance and pension services. We at Money9 believe that the collaborative efforts of the government and the industry have led to a firm establishment of the supply side mechanism. The need of the hour, however, is to build a matching demand side mechanism to truly achieve the financial inclusion dream. I'm happy to share that through the day at the second edition of Financial Freedom Summit, we look today at plethora of solutions to materialize the Financializing India agenda. For me and all of us at TV9 Network, the resilient spirit of India shines through. As India's #1 news network, we see a nation unyielding in its aspirations, adapting to change, and poised for the next big leap. Sir, I deem it my proud privilege to now invite you to address the Money9 Financial Freedom Summit. Thank you, sir. जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुरुआत के बातों से लगता है कि आज का दिन काफी अच्छी चर्चा और संवाद से Money9 का जो फाइनेंशियल फ्रीडम समिट रहा है, ये सभी आपके दर्शकों को आगे चल के एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के रूप में काम करेगा और मेरा पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से आप आगे भी जो जनता से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके इस प्रकार के समिट करेंगे, जिसमें मुझे स्वयं भी पहुंचने का मौका मिलेगा। आज भी मेरी तीव्र इच्छा थी मैं मुंबई में आपके साथ रहूं, पर आप जानते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं दिल्ली नहीं छोड़ पाया। आज सरस्वती पूजा का दिन भी है, वसंत पंचमी है, नई शुरुआत की भी आज माना जाता है बहुत अच्छा दिन है। और मैं समझता हूं कि आपका जो ये फाइनेंशियल फ्रीडम समिट है, ये लाखों करोड़ों आपके दर्शकों को
उम्मीद देगा एक नई शुरुआत करने के लिए, नए तरीके से अपना निवेश करने के लिए, अपनी सेविंग्स को बैंक में रखना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, अगर कोई और तरीके से वो उसका इस्तेमाल करना चाहे तो अलग अलग आपके इस समिट के बाद लोगों को अवसर भी मिलेंगे, जानकारियां भी मिलेंगी। आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कुछ देर पहले दुबई में, रादर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अबू धाबी में एक बड़ा भव्य मंदिर जो स्वामीनारायण संप्रदाय के हमारे लोगों ने वहां पे बनाया और इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर है। साथ ही साथ आज यूपीआई रुपे कार्ड भी दुबई में लॉन्च हुआ है। पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको G1 का नाम दिया गया। दर्शाते हैं कैसे पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम्स, रोबस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस और पॉलिसी की बात होती है, तब कैसे भारत की प्राथमिकता को आज विश्व के अलग अलग देश पहचान कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। एक प्रकार से आज के भारत के जो निवेशक है, उद्योजक है, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अगर आज की स्पिरिट देखे तो उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है नेवर से डाई। कभी रुकने वाला ये देश नहीं है, कभी थमने वाला देश नहीं है। अब भारत तेज गति से आगे चल के आगे जाने वाला देश है। इसी गति से हम विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अगले 3-4 साल में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और मेरा तो मानना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, इस अमृत काल में भारत आगे आने वाले दिनों में 2047 तक एक समृद्ध विकसित भारत तो बनेगा ही, लेकिन आज की जो हमारी लगभग $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये बढ़कर $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। और विश्व की जो आर्थिक विकास की दर है, उसमें भारत आज भी और आगे चल के भी सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा। भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को गति देने में एक अहम भूमिका निभाएगा और आगे चल के भारत का हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य की आशा, उमंग के साथ उत्साह से, कर्तव्य भावना से इस मुहिम में अपना पूरा योगदान देगा। मित्रों, आज के सभी जो विनर्स हैं, सभी जो अवॉर्डीज हैं, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे चल के वो भी और तेज गति से अपने काम में प्रॉस्पर करें, सफलता प्राप्त करें। और बाकी जो लोग आज शायद जीते ना हो, जिनको आज अवार्ड नहीं मिल रहा है, वो आज के इस कार्यक्रम से और उत्साह लेके जाएं कि अगले वर्ष वो भी जीत के आए, वो भी इस कार्यक्रम में अपने हुनर के आधार पर रिकॉग्नाइज हो और उनका भी सम्मान हो। आपका जो मनी9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे 2023 मैंने देखा, उसमें कई नई चीजें, चौंकाने वाली चीजें देखने को मिली। एक प्रकार से भारत की जो आर्थिक जगत है, उसके भी एक झलक इस सर्वे में देख के समझने को मिलती है। जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स के प्रति लोगों का आकर्षण,
और थोड़ा बहुत गोल्ड सोने पर भी अभी भी थोड़ा सा आकर्षण बचा है। मैं समझता हूं कि बैंक डिपॉजिट्स का आकर्षण 77% लोगों ने बताना ये दर्शाता है कि अभी भी बैंकों के ऊपर हमारे देशवासियों का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से बैंकों को मजबूत बनाने का काम किया गत 10 वर्षों में, जिस प्रकार से पुराने समय की टेली बैंकिंग को बंद किया, टेलीफोन बैंकिंग यानी लोन उन्हीं को मिलेंगे जिनके लिए कोई फोन आएगा या दिल्ली से या विभाग से या कोई बड़ा व्यक्ति फोन करेगा तो ही आपको लोन मिलेगा। बड़े बड़े लोग हजारों लाखों करोड़ के लोन लेके फिर डिफॉल्ट करके और कभी पैसा ही ना वापस देते थे। जो पहले चलता था हिसाब किताब, उसमें जो लगाम कसी, आज कोई व्यक्ति बैंक को फोन करने की जरूरत नहीं कर सकता। आज बड़े से बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, अगर डिफॉल्ट करे, बैंक का पैसा वापस नहीं दे, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, उसको उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसके कारण कहां देश में इतना बुरा हाल था बैंकों का, कई बैंक लॉस में चल रहे थे, डबल डिजिट में एनपीए और रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स थे। और पहले के जमाने में एनपीए कम दिखाए जाते थे, एवरग्रीनिंग के माध्यम से लोन को चालू रखा जाता था। ये सब प्रथाओं पे कड़ी कार्रवाई करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बैंकों को मजबूत बनाया। यहां तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले साल का प्रॉफिट 50,000 करोड़ रुपए था। और सभी पीएसयू बैंक्स के आज आप स्टॉक प्राइस देखिए तो तेज गति से उसमें वृद्धि हो रही है। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा है कि भारत के जो बैंकिंग सिस्टम पे आज आपके 77% रिस्पोंडेंट्स ने एक मोहर लगाई है कह के कि वो बैंक में डिपॉजिट रखना चाहते हैं। कुछ लोग अभी भी सोने पे प्रिफर करते हैं, 21% लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं। मैं तो सबसे दरख्वास्त करूंगा और आपके चैनल से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप एक कैंपेन चलाएं और लोगों को बताएं, लोगों को अवगत कराएं कि गोल्ड इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट एसेट। सोने पे जो रिटर्न मिलता है, अगर आप आज सोना खरीदे और 20-25 साल बाद उसको कंपेयर करें आज के बैंक डिपॉजिट से, तो बैंक डिपॉजिट से ज्यादा कमाई होती है। बैंक डिपॉजिट सेफ भी है। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक विशेषकर, और आपके सर्वे में आया कि 81% लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक पे अपना कॉन्फिडेंस का मोहर लगाया। और पब्लिक सेक्टर बैंक में कभी किसी का 1 रुपया नहीं डूबा है, कभी किसी को 1 रुपए का नुकसान मोदी सरकार ने होने नहीं दिया। उनकी कमजोर से कमजोर स्थिति में भी सरकार उनके साथ खड़ी रही। लाखों करोड़ रुपए सरकार ने उनको निवेश के रूप से सहायता दी और बैंकों को बहुत ताकत देकर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाकी बैंक्स की भी ईर्ष्या का कारण बन गए। और मुझे विश्वास है कि आगे चल के भी हमारे बैंक्स अच्छा काम करेंगे। तो लोगों का जो सोना चांदी के ऊपर जो अभी भी आकर्षण है, इसको हमें रोकना है। इससे विदेशी मुद्रा भी बाहर जाती है और निवेशकों का भी नुकसान होता है। जो रिटर्न आज उनको दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में मिल सकता है, उतना रिटर्न कभी सोने चांदी में नहीं मिलता है। हो सकता है कभी शॉर्ट टर्म में उसमें रिटर्न मिले, लेकिन हाउस होल्ड सेविंग्स के लिए ये एक बहुत ही अनप्रॉफिटेबल, इम्प्रॉफिटेबल, अनइकोनॉमिकल, अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट का साधन है। अगर ये बात मुहिम की तरह टीवी 9 चलाए तो मैं समझता हूं पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, पर्याप्त अर्थव्यवस्था के जुड़े हुए लोग
इस बात की पुष्टि करेंगे कि सोना चांदी अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है। हमें पहनने के लिए, परिवार में लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जो लगता है वो तो ठीक है, लेकिन निवेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत ही लो यील्डिंग एसेट है। ये मैं आप सबसे बताना चाहता हूं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी भारत में अब प्राथमिकता ले रही है। 27% आज हाउस होल्ड्स के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। मेरा मानना है इसमें बहुत बड़ी वृद्धि की संभावना है और आगे चल के हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना बीमा ले, कुछ ना कुछ एक रक्षा कवच बनाए, तो मैं समझता हूं कि परिवारों को दुख सुख में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी हो, ये बहुत काम में आती है। इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो अलग अलग प्रकार की बीमा योजनाएं हो जिसमें केंद्र सरकार भी सहायता देती है, उसमें दोनों है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, एक्सीडेंट पॉलिसी भी है। साथ ही साथ अटल पेंशन स्कीम भी लॉन्च की मोदी सरकार ने, जिससे वृद्ध अवस्था में लोगों को पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हो सके। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, इसके साथ जुड़े। और जो मैंने किस्से सुने हैं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई, सरकार द्वारा दी गई जो बीमा योजनाएं हैं उससे जो लोग जुड़े हैं, उसमें कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने कठिन समय में इसका बहुत लाभ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के हर व्यक्ति इसके साथ जुड़े और इसका लाभ ले पाए। 62% लोगों ने यूपीआई के ऊपर भी अपना कॉन्फिडेंस की मोहर लगाई है। हमारे लिए बड़े संतुष्टि की बात है। और जैसा अभी अभी बताया गया, आज विश्व में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यूपीआई के माध्यम से और भारत में डिजिटली की जाती है। ये भी हम सबके लिए बहुत आनंद और खुशी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था, और मैं कोट करना चाहूंगा, देयर कम्स अ टाइम इन द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ एनी कंट्री व्हेन all circumstances are in its favor, when that country makes itself strong for many centuries. I see the same time for India today. यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक कहते हैं, आज पूरी कायनात एक प्रकार से भारत को समृद्ध और मजबूत बनाने में हमारा साथ दे रही है। आज परिस्थितियां अनुकूल है भारत के। हमने इस समय को गंवाना नहीं है, हमने इस समय का पूरा लाभ लेना है। हमने इस समय का कण कण क्षण क्षण देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित करना है। हाल में ही माननीय निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री जी, ने पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर भी ले किया। उसमें उन्होंने बताया कैसे फ्रैजाइल 5 से आज देश एक समृद्ध देश, एक टॉप 5 इकोनॉमी बना है। उन्होंने बताया कैसे यूपीआई के माध्यम से जो जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी ने आज देश भर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचाया, बिना भ्रष्टाचार, बिना दलाल, बिना बिचौलिए। कैसे 30 करोड़ मुद्रा लोन्स लोगों तक पहुंचे और 3 करोड़ लोगों को अब हम लखपति दीदी बनाकर देश को तेज गति से आगे बनाना चाहते हैं, नारी शक्ति को और समृद्ध बनाना चाहते हैं। अलग अलग पुरानी जो कमियां थी उसको मोदी सरकार ने कैसे बदलाव दिया है, कैसे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से कैसे इस सरकार ने भ्रष्टाचार
मुक्त व्यवस्थाओं से, कैसे टेक्नोलॉजी के साधन से इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम फैसले लिए। अब जो पुरानी रोजमर्रा की समस्याएं थी, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, स्वास्थ्य सेवाओं हो, शिक्षा हो, चाहे वो बिजली सड़क पानी हो, इन समस्याओं से आज देश के लोगों को मोदी सरकार निजात दे रही है, इन समस्याओं का समाधान कर रही है, जिससे आज 140 करोड़ देशवासी मजबूती के साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए कर्तव्य भावना से आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो, सबका प्रयास इसमें जुड़े, ये सबका विश्वास आज देश में कायम हुआ है। 25 करोड़ भाई बहन गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त हुए हैं। अब हमें मिलके इस 140 करोड़ देशवासियों की आशा और अपेक्षाओं को पूरा करना। अब युवा शक्ति को, और हमारा देश तो युवा देश है, 2/3 भारतवासी युवा है, वर्किंग एज में। हमें सबको मिलके इस देश को आगे बढ़ाना। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी अबू धाबी में भी बताया कि अब देश तेज गति से हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। आपने देखा होगा पिछले वर्ष भारत की स्टॉक मार्केट तो 20% वृद्धि दिखाई, जबकि अलग अलग देश नुकसान में अपने स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे। ऐसे ही चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया हो, हर प्रकार से देश में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मेरा मानना है ये समय अमृत काल का हम सबको मार्ग बताता है विकसित भारत बनाने का। जब हम 100 साल देश के आजादी के सेलिब्रेट करें, साथ ही साथ एक विकसित भारत हो, देश के 140 करोड़ लोगों तक विकास और समृद्धि पहुंचे। और इसके लिए मैं 3 रास्ते, 3 मार्ग आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर देना है। जो पढ़ाई और शिक्षा का करिकुलम है, इसमें भी फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हमारे जो ये इन्फ्लुएंसर्स है, इनके माध्यम से भी फाइनेंशियल अवेयरनेस आम आदमी में, पर्टिकुलरली हमारे युवाओं में, युवा युवतियों में बढ़ानी है। दूसरा, जो नई टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, क्लाउड टेक्नोलॉजीज हो, डेटा एनालिटिक्स हो, इन सब के माध्यम से हमने फाइनेंशियल वर्ल्ड को तेज गति से आगे बढ़ाना। और तीसरा, हमारा अप्रोच उपभोक्ता की तरफ संवेदनशील होना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अगर हम सब रखेंगे तो हम शेयर होल्डर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट करेंगे और कस्टमर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट करके भारत का जो ब्रांड है, भारत का जो एक पहचान है विश्व में, इसको बढ़ाएंगे और विश्व में भारत के ब्रांड की इज्जत होगी, भारत की इज्जत होगी, हर भारतवासी की इज्जत होगी। चलिए हम सब मिलके ये 21वीं सदी की चुनौतियों में साथ कर्तव्य भावना से काम करें। हम पुरानी सोच जो गुलामी की मानसिकता है उससे उभरें। रीथिंक द फ्यूचर, रीइमेजिन द फ्यूचर, रिफॉर्म आवर स्टाइल ऑफ वर्किंग। रीथिंक, रीइमेजिन और रिफॉर्म के रास्ते पर हम सब मिलके एक नए भारत का निर्माण करें।
एक विकसित भारत का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद और टीवी 9 का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच अपनी बातें रखने का मौका दिया। आज के कार्यक्रम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और टीवी 9 की सफलता के लिए सदैव मेरी शुभेच्छा टीवी 9 के साथ और आप सबके निवेश में, आप सबके फाइनेंशियल दुनिया के सभी लोगों के भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद।